It's welcome to third standard English class. Today I come with lesson number 23. Lesson name is The Two Merchants of Seri. With the help of previous video, I explained the half part of this lesson. Now with the help of today's video, I am going to explain remaining part of this lesson. Okay? By previous video, I explained up to here. Now with the help of today's video, I am going to explain remaining part. After a while, the honest merchant finished the rounds of his streets and entered the street where the old lady lived. After a while means कुछ समय बाद जो ऑनेस्ट मर्चेंट था अपना राउंड फिनिश करके ही फिनिश्ड हिज राउंड एंड ही केम टू द प्लेस देयर द ओल्ड लेडी लिव्ड, जहाँ पर वह बूढ़ी औरत रहती थी. He passed her house calling, "Buy my water jars, buy my tinware, buy my brass." Like the previous merchants, he also make the sound like buy my water jars, buy my tinware, buy my brass. वो भी अपनी चीज़ें बेचने के लिए आवाज़ लगा रहा था, मीन्स लोगों को बुला रहा था. The little girl heard him and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. छोटी सी लड़की ने उस मर्चेंट का आवाज़ सुनी. The little girl heard the sound of honest merchant and he told her grandmother to come out from house and ask to this merchant what would he give for the dish. वो इस डिश के लिए कितने पैसे देंगे या फिर क्या चीज़ें देंगे. ओके. My child, said the grandmother. The merchant who was just there threw the My child, said the grandmother. Grandmother ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची. The merchant who was just here threw the dish on the ground and went away. यह मर्चेंट वही है. He is the same merchant who just now threw the dish in front of us. I have nothing else to offer in trade. मेरे पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए. Okay? But grandmother, said the little girl. लेकिन लड़की ने कहा, दादी माँ. This one looks pleasant. ये अच्छा दिख रहा है. He is looking nice. Ask him. Perhaps he will give us something for it. You please ask to him. I hope he can give something by that dish. उस डिश के लिए वो हमें कुछ न कुछ तो देगा जरूर. प्लीज़ आप उससे पूछिए. Call him then and show it. Call him then I show it to him, said the old woman. बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम उस मर्चेंट को बुलाओ and then I will show this dish to him. मैं ये डिश उसको दिखाऊंगी. As soon as the merchant took the dish in his hand, he knew it was gold. जैसे ही as soon as the merchant took the dish in his hand, he come to know that it was made by gold. यह सोने से बना हुआ डिश है. Immediately he said, "This is a golden dish." And that time only, means whenever he come to know that the dish is a gold dish, that time only he said to the grandmother that it is a golden dish. यह एक golden dish है, सोने का प्लेट है. It is worth more than all my money and all my wares. The honest merchant, told the grandmother that the dish price is more than my all things and more than by my all money. मेरे सारे पैसे और सारे चीज़ों से भी इसका कीमत नहीं मैं दे पाऊँगा. I will bring enough money tomorrow and then buy it from you. He said to them that tomorrow I will bring more money and then I will
टेक दिस डिश, फिर मैं ये डिश लेकर जाऊंगा। द ओल्ड वोमन वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड, वो बूढ़ी दादी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह एक सोने का प्लेट है। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी एंड गुडनेस ऑफ द मर्चेंट, वो मर्चेंट के ईमानदारी और अच्छाइयों से पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो गई, मतलब प्रभावित हो गई। टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो, शी सेड, उन्होंने कहा। ग्रैंड मदर सेड टू द मर्चेंट दैट यू टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो, तुम इस डिश को लेके जाओ और पैसा मुझे कल दे दो। द ऑनेस्ट मर्चेंट kept all his wares and money with the old woman and took the dish. The honest merchant ने क्या किया, अपनी सारी चीज़ें और सारे पैसे दादी माँ के पास रख दिया और डिश लेकर चला गया। He left himself only enough money for the boat ride that he had to take on his way back. मर्चेंट ने उतने ही पैसे अपने पास लिए जिससे वह आने जाने का पैसा, मतलब नाव का खर्चा, बोट मीन्स नाव का वो खर्चा दे सके। आफ्टर सम टाइम्स द ग्रीडी मर्चेंट केम बैक टू द हाउस वेयर ही हैड सीन द गोल्डन डिश एंड सेड, ब्रिंग दैट डिश टू मी एंड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद लालची मर्चेंट फिर से आया और उसने ग्रैंड मदर से कहा कि वह डिश दे दो और मैं उसके बदले तुम्हें कुछ दूंगा। नो, सेड द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ने कहा नहीं देना होगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द डिश टू यू, मैं डिश तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। यू सेड द डिश वॉज वर्थलेस, but another honest merchant has paid a great price for it, so I gave it to him. बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे डिश नहीं देना, तुमने कहा था कि ये डिश बिना यूजलेस है, बट एक ईमानदार मर्चेंट ने मुझे इसके अच्छे पैसे दिए हैं, so that's why I gave it to him, इसलिए मैंने ये डिश उसे दे दिया। यू शुड नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल, तुम्हें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का यूज़ नहीं करना चाहिए, उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ग्रैंड मदर सेड टू द ग्रीडी मर्चेंट। वॉट कुड द ग्रीडी मर्चेंट सेड? ही पेड द प्राइस फॉर हिज डिसऑनेस्टी एंड ग्रीड। ग्रीडी मर्चेंट ने क्या कहा होगा? एक्चुअली उसकी बेईमानी और लालच के कारण उसने एक सोने का प्लेट खो दिया। सो बाय ओवरऑल स्टोरी वी कम टू नो दैट वी मस्ट बिहेव लाइक ए ऑनेस्ट पर्सन, हमें एक ईमानदार पर्सन के जैसे बिहेव करना चाहिए। इन आवर फ्यूचर नेवर बी ग्रीडी, अपने फ्यूचर में, भविष्य में हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई एक्सप्लेन द होल लेसन। ओके।